حضرات یہ ایسی کتاب تھی رسول اللہ کی سیرت کی جو غیر مسلم سوامی لکشمن پرساد نے لکھا، لیکن جب اس سے پوچھا گیا، کسی نے کہا کہ جناب سوامی لکشمن پرساد صاحب آپ نے اتنی اچھی کتاب لکھی ہے، ہم پڑھتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ہمارے ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ہمارے ایمان تازے ہو جاتے ہیں، آپ بتائیے کہ آپ کیوں نہیں اس پیغمبر پر اسلام لے آئے؟ لیکن آپ کو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کے پہلے حالات کو جاننا ضروری ہے کہ ایسے ہی دنیا میں اللہ نے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کو نہیں بھیجا تھا، بلکہ ان کے دنیا میں آنے سے پہلے ان کے والدین کی نیت کیا تھی اور کس بہترین نیت کا وہ ثمرہ اور بدلہ تھے، اسے بھی جاننے کی ضرورت ہے۔ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پورے ملک میں یا میں یہ کہوں کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی غوث الورا کے چاہنے والے ہیں جشن غوث الورا کا انعقاد کر رہے ہیں، اسی ضمن آج شہر گورکھپور میں تنویر کٹرا کے اندر لوگوں نے جشن غوث الورا کا اہتمام کیا ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب انوار عالم، جناب غفران احمد عرف شہاب، جناب شمس الحق، فیصل، معراج احمد، انتخاب، شیخو بھائی اور ظفر اسلم، گڈو وغیرہ کا، ان لوگوں کی کاوشوں سے، ان لوگوں کی محنتوں سے آج کی اس خوبصورت محفل کا یہاں پہ انعقاد کیا گیا ہے۔ جیسا کہ ہماری روایت رہی ہے کہ ہم کسی بھی محفل کا، کسی بھی بزم، کسی بھی جلسے کا آغاز تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے کرتے ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی کہ ہماری آج کی اس بزم میں ہمارے شہر کے ایک بہت ہی اچھے حافظ و قاری جناب قاری محمد عثمان ہمارے بیچ یہاں تشریف فرما ہے۔ میں مقدمانہ التماس کر رہا ہوں جناب قاری محمد عثمان سے کہ آئیں اور باضابطہ طور سے تلاوت کلام پاک کے بعد آج کی اس نورانی بزم کا آغاز کریں۔ جناب حافظ و قاری محمد عثمان۔ معزز حاضرین اکرام اور سامعین اکرام، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وله الجوار المنشآت في
فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان اللہ سبحان اللہ. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا جو تو کرم ہے شد بتوا تیرا. کیا جو تو کرم ہے شد بتوا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شربت تیرا. لگے سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. لگے سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. بلا لو پھر مجھے شاہ بہاروں پر مدینے میں. بلا لو پھر مجھے شاہ بہاروں پر مدینے میں. میں پھر روتی ہوئی آؤں تیرے در پر مدینے میں. میں پھر روتی ہوئی آؤں تیرے در پر مدینے میں. میں پہنچوں کوئے جانا میں گرے گا چاک سینہ چاک. میں پہنچوں کوئے جانا میں گرے گا چاک سینہ چاک. گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں. گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يقبل الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر. حضرات یہ حقیقت ہے کہ اس پوری کائنات میں اگر خدا رب ذوالجلال کے بعد کوئی ذات تعریف و مدح و ستائش کے قابل ہے تو یقیناً وہ ذات گرامی سرور دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. وہ ذات جس کے لیے شاعر نے یوں کہا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری
आंचा खूबा हमादारन तू तनहा डाली। यकीनन वो रात तमाम कायनात में खुदा रब्बे जुल जलाल के बाद सबसे मोहब्बर, सबसे चाहने वाली ज़ात है। वो ज़ात जिसके लिए खुदा रब्बे जुल जलाल ने ये फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ हबीब, हमने आपके लक़ब को, हमने आपकी ज़ात को बदल किया। तो जिसकी तारीफ, जिसकी मदह, जिसकी सताइश खुद खुदा रब्बे जुल जलाल फरमा रहा हो। हजरत, हम जैसे हकीर और गुनाहगार बंदों से उसकी तारीफ, उसकी मदह और उसकी सताइश किन लफ्ज़ों से हो सकती है। लेकिन हमारा ये भी यकीन काबिल है कि हम दुनिया में सबको चाहते हैं। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, हम सबको चाहते हैं। मगर मुस्तफ़ा के बाद आइए उसी बारगाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नाते पाक के पेश करने के लिए, नाते पाक के हदिये के लिए मैं एक बहुत ही मुनफरिद और मुमताज़ आवाज़ को यहाँ पर ज़हमत सुगंध हमारे बीच तशरीफ ला चुके हैं, जनाब कौसर गोरखपुरी। मैं मुल्तमिस तो आए और बारगाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपना हदिया पेश करें। जनाब कौसर गोरखपुरी। सामीन हज़रात, स्टेज पे रौनक अफरोज शोराए कराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक मतला, एक शेर समात फरमाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने कौसर भाई? क्या कहने भाई? सुभान अल्लाह,
फिरे, रोता फिरे गलियों में नबी का दीवाना। कौन सा दीवाना समाज फरमाए? अताओ क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत बिलाल आशिक नबी, हज़रत बिलाल आशिक नबी, देखा ना सुना होगा किसी ने कभी, देखा ना सुना होगा किसी ने कभी, लंबे नबी नबी का है हर दम तराना रे, लंबे नबी नबी का है हर दम तराना रे, गलियों में रोता फिरे गलियों में, तैयबा की गलियों में नबी का दीवाना रे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाते महबूबे दावर सनद हो गई, नाते महबूबे दावर सनद हो गई, फर्द इसियां मेरी मुस्तरद हो गई, नाते महबूबे दावर सनद हो गई, फर्द इसियां मेरी मुस्तरद हो गई, मुझसा आसी भी आगोश रहमत में है, ये तो बंदा नवाजी की हद हो गई। हजरत आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और पहुंचते हैं एक नौजवान और खुश कलाम नाख्वा के हुजूर। मैं मुल्तमिस हूँ जनाब अब्दुल्ला हाफिज अब्दुल्ला जामी से कि आएँ और बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नाते पाक का हदिया पेश करें। यही बात हुई, यही यहाँ पे हम लोग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थोड़ा सा आप हजरात खामोशी इख्तियार करें। नाते पाक का मतला हाजिर करता हूँ, समाप्त है। स्टेज पे हजरत मौलाना अल्लामा मौलाना अज़ाकी अहमद साहब तशरीफ फरमा है। बहुत सी मुझे खुशी दिल के बाद उनकी आप अपनी सुनेंगे। नाते पाक का मतला हाजिर करता हूँ, समाप्त फरमाए। अनवार भाई थोड़ा सा खामोशी इख्तियार करें। नाते पाक का मतला हाजिर करता हूँ, समाप्त फरमाए। जब खुद को मैंने उनका दीवाना बना दिया। क्या कहने भाई, सुभान अल्लाह। जब खुद को मैंने उनका दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया। जब खुद को मैंने उनका दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया, आका ने मुझको मिट्टी से सोना दिया। अगर शेर पसंद है तो सुभान अल्लाह के साथ सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बज़ात कहते हैं। जब खुद को मैंने उनका दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया, आका ने मुझको मिट्टी से सोना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने, सुभान अल्लाह। और एक तारीखी शेर हाजिर करता हूँ, समाप्त फरमाए। अरे अब्दुल्ला भाई क्या कहने, सुभान अल्लाह। कि हम उनकी अज़मतों का कसीदा पढ़े न क्यों, कसीदा पढ़े न क्यों, हम उनकी अज़मतों का कसीदा पढ़े न क्यों, कसीदा पढ़े न क्यों, हम उनकी अज़मतों का कसीदा पढ़े न क्यों, कसीदा पढ़े न क्यों, जिसने समुंदरों में भी रास्ता क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। में भी रास्ता बना दिया, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमें उनकी अज़मतों का कसीदा पढ़े न क्यों, कसीदा पढ़े न क्यों, जिसने समुंदरों में भी रास्ता बना दिया।
ये प्रोग्राम जश्न गौसुल वरा का प्रोग्राम है, तो मकबत हाजिर करता हूँ समाअत फरमाए बतौर ख़ास। अता हो। बिल्कुल ताज़ा कलाम है, एक मरतबा एक दो शेर सुन ले, उसके बाद इंशाल्लाह सुनाता हूँ कि नज़र वाले समझते हैं हकीकत गौसे आज़म की, नज़र वाले समझते हैं हकीकत गौसे आज़म की, जो नादा है वो क्या जाने विलायत गौसे आज़म। सुभान अल्लाह। और यकीनन नूर हक का मिल गया है उसको दरवाजा, यकीनन नूर हक का मिल गया है उसको दरवाजा, मिला जिसको वसीला और निस्बत गौसे आज़म। सुभान अल्लाह। और एक शेर और हाजिर करता हूँ, जो यहाँ गौस के दीवाने बैठे हैं उनके लिए शेर हाजिर करता हूँ। समाप्त फरमाए कि जला सकती नहीं नारे जहन्नम बिल यकीन उसको, जला सकती नहीं नारे जहन्नम बिल यकीन उसको, है जर्रा भर भी जिस दिल में मोहब्बत गौसे आज़म की, है जर्रा भर भी जिस दिल में मोहब्बत गौसे आज़म की। मतलब हाजिर करता हूँ मकबत का हाजिर फरमाए। हर वली से ऊंचा है रुतबा गौसे आज़म का, हर वली से ऊंचा है रुतबा गौसे आज़म का, कुल जहां में चलता है चलता है सिक्का गौसे आज़म का, कुल जहां में चलता है सिक्का गौसे आज़म का, हर वली से ऊंचा है रुतबा गौसे आज़म का। आखिरी विषय हाजिर करता हूँ, समाअत फरमाए। बताओ पढ़े बहुत खूब। कि मालो सर फिदा उन पर, जानो दिल फिदा उन पर, मालो सर फिदा उन पर, जानो दिल फिदा उन पर, मालो सर फिदा उन पर, जानो दिल फिदा उन पर, अरे आला से भी आला है, आला से भी आला है रुतबा गौसे आज़म का, आला से भी आला है रुतबा गौसे आज़म का, हर वली से ऊंचा है रुतबा गौसे आज़म का। बावकार तबीयत बिलखुसूस निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे अली वकार जनाब फर्रुख जमाल साहिब, और इसके अलावा दीगर शोरा सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम, सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शाहों से मिला है न तवंगर से मिला है, अल्लाह का इरफान इसी दर से मिला है। सुभान अल्लाह। सुभान जिसको भी मिला है तो मुक़द्दर से मिला है, मुझको तो मुक़द्दर भी तेरे दर से मिला है। हुज़ूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी के हवाले से तो मुक़र्रिर ख़ुसूसी मुफ्ती साहब क़िबलाई इंशाअल्लाह उस पर गुफ्तगू करेंगे। इसलिए मैंने
अपने मौजू को दूसरा रुख दिया है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदुल करीम ने इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो, परहेजगारी करो, वक़ूलु क़ौलन सदीदा, और सटीक बात बोलो, सीधी बात, सच्ची बात बोलो। या अल्लाह फ़ायदा क्या होगा? फरमाया, युस्लिह लकुम अअमालकुम, हम तुम्हारे आमाल सुधार देंगे, वयग़फ़िर लकुम दुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। ये अल्लाह ताला का वादा है। इसीलिए इस दुनिया इस्लाम में इस्लाम की आबियारी के लिए जब भी ज़रूरत पड़ी है तो इस्लाम के मानने वालों में औलिया किराम, बुजुर्गान दीन, हर मुखालिफ हवा का पुरज़ोर उन्होंने मुकाबला किया, उसका दिफा किया। आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जिस दौर के बारे में निशानदेही की गई थी कि सुबह इंसान मुसलमान होगा और शाम को काफिर हो जाएगा, इस दौर में हमारी जिम्मेदारियां फज़ूतर है। हमारी जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं कि कौम कहाँ जा रही है, किस नहज पे ज़िंदगी बसर कर रही है, इसकी हालात, इसके मामलात क्या हैं, किस वजह से ये परेशान हाल है। ये उलमाए हक की हमेशा जिम्मेदारी रही, उन्होंने निभाई। लेकिन इस दौर के उलमा इल्ला माशा अल्लाह, उसके अलावा उलमा के साथ साथ जो पढ़ी लिखी अवाम भी है, शायद उसने भी अपने मनसब को नहीं समझा कि वो भी अल्लाह तबारक व तआला के दीन का दाई है। उसको भी हुक्म दिया गया था कि अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करे। हजरात, आज हम जिस दौर में हैं, यहाँ से लेकर पूरी दुनिया किसी कोने में चले जाएं, मुसलमानों का क्या वक़ार है, क्या इज्जत है, क्या मकाम व मर्तबा है। एक जानवर का खून तो शायद महंगा हो, लेकिन मुसलमानों का खून सबसे सस्ता हो गया। इतना सस्ता हो गया कि आज न जाने कितने बेगुनाहों को बेदुरेह कत्ल किया जाता है। ऐसी सूरत हाल में हमारी जिम्मेदारी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इसलिए मुझे वो बात याद आती है कि जब अबू इसहाक़ रहमतुल्लाह अलैह जंगल में तशरीफ ले गए तो वहां पर अल्लाह के कुछ नेक बंदे घास खा करके अल्लाहू अल्लाहू की सदाएं लगा रहे थे। आप जब वहां गए तो इरशाद फरमाया देख करके, अकल तुमुल हशीशता हाउना अंतुम व उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल फितना, तुम यहाँ घास खा करके अल्लाह का जिक्र कर रहे हो, वहां उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फितने में पड़ी है। चलो यहां से उठ करके और उम्मत की नफ्स पर हाथ रख करके उसकी आने वाली मुकद्दर को, आने वाली जिंदगी को दुरुस्त करने का काम करो, उनके हालात को सुधारने का काम करो। ये उम्मत का हमेशा से ये मामला रहा। लिहाजा अगर इसके बरअक्स कोई करता है तो उसका अंजाम भी सही नहीं है। हजरत अल्लाह तबारक व तआला के हबीब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, जिब्रील जाओ फलां वादी को उलट पुलट कर दो, तहस नहस कर दो, तबाह व बर्बाद कर दो। अर्ज करते मौला, उसमें एक ऐसा बंदा भी है जहां सारे गुनहगार हैं, वहां एक ऐसा बंदा है जो हमेशा तेरा जिक्र करता है, जिसकी जबान पर तेरी तारीफ व तौसीफ रहती है। ऐ परवरदिगार आलम, तेरे यहाँ तो ज़ाब्ता ये है कि अगर किसी जमीन पर अल्लाह का जिक्र करने वाला कोई जाकिर मौजूद हो तो फिर तू इसे तबाह तो नहीं करता। ये तो ज़ाब्ता है तेरा। रब का इरशाद होता है, नहीं, उस वादी को और उस बस्ती को उलट पुलट कर दो और साथ में उसे भी उलट पुलट कर दो, इसलिए क्योंकि वो ऐसा शख्स है, इबादत तो जरूर कर रहा है मगर माहौल खराब हुए,
माहौल पेचीदा हुए, उम्मत को जरूरत थी, उम्मत को संवारने की जरूरत थी, तो उसकी वजह से जो हालात बिगड़े हैं, इसके चेहरे पर भी कोई तगय्युर नहीं आया, कोई तब्दीली नहीं आई। इसे कहो कि हमें तुम्हें तुम्हारे सजदे की कोई जरूरत नहीं है। पता क्या चला कि अगर हम मुसलमान हैं, बहैसियत मुसलमान, तो हमारी एक जिम्मेदारी है, एक इमाम है उसकी जिम्मेदारी है, एक माँ है उसकी जिम्मेदारी है, एक बाप है उसकी जिम्मेदारी है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। आका अलैहिस्सलाम फरमाते तुम में हर एक अपने मातहत का निगहबान है, हर माँ अपने मातहत का वो जवाबदेह है। कल मैदान महशर में उसके मातहत के बारे में सवाल किया जाएगा। आज हमसे पूछा जाएगा, हमसे कल पूछा जाएगा तुम्हारे मुक्तदी यहाँ थे, तुमने उनके लिए क्या काम किया। एक बाप से पूछा जाएगा तुम्हारे बेटे भटकते रहे, तुमने उनके लिए कौन सा रास्ता इख्तियार किया। एक माँ से पूछा जाएगा तुम्हारी बेटियां मोबाइल देख करके गैरों के साथ फरार हुई, लाखों वहां से बेघर हुई, तुमने कौन सा काम किया। हजरात के सारे सवालात किए जाएंगे, क्या जवाब होगा, हमने कौन सी तैयारी की है। लिहाजा ये उम्मत के हर फर्द की जिम्मेदारी है, उम्मत के हर फर्द की, तो अपने माहौल को देखे, अपने लोगों को देखे, फिक्र करे हमारी जिंदगी किस लिए है। इसलिए है कि कमाए 500 स्क्वायर फीट मिल जाती जमीन, यहाँ 10,000 मिल जाती, कोई 200 स्क्वायर फीट। हमारी जिंदगी का ही मकसद है कि रात को चिकन हो, फिर रात दोपहर में मटन हो, ये हमारी जिंदगी का मकसद है। दुनिया की तमाम कौमों का मकसद है, ईसाइयों का अलग मकसद है, यहूदियों का एक अलग ज़ाब्ता उनका मकसद है, लेकिन तन्हा ये मुसलमान कौम है, इसका कोई मकसद नहीं है, इसका हमें कोई मकसद दिखाई नहीं देता। हजरात कब हम मौज करेंगे, कितनी तकारीफ होगी, कितने प्रोग्राम होंगे, हम अपने अमाल क्यों नहीं बदलते हैं। आज हमारे अमाल इतने बिगड़ गए हैं, जो एक दो कमियां नहीं, जो 4, 5, 6 गलतियां और कमियां नहीं है, एक लंबी फहरिस्त है। अगर उसकी बात की जाए तो वक्त दरकार है, लेकिन इतनी बात अर्ज करता हूं जो बड़ी मुझे बहुत ही तकलीफ दे बात है मेरे लिए, और आपको भी शायद उसका दुख होगा। मैं आपके सामने बात बताऊं कि जनाब लक्ष्मण स्वामी प्रसाद एक बहुत बड़ा राइटर गुजरा है, जिसने हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत पर 200 से 250 पेज की एक किताब लिखी, जिसका नाम था अरब का चांद। अरब का चांद इस किताब में था क्या, हुजूर के जुल्फों के बाद, हुजूर की सीरत, हुजूर के कैरेक्टर, हुजूर अलैहिस्सलाम की कल्चर, हुजूर की सकाफत, हुजूर की तहजीब, हुजूर के कमालात, हुजूर के किरदार, हुजूर की चाल, हुजूर के जितने भी मामलात थे, उसने पिरो कर लिखा था। जो उस किताब को पढ़ता आंखों में अश्क आ जाते, ईमानदार पढ़ता था, उसके ईमान में मजीद हलावत, मिठास और तरोताजगी पैदा हो जाती थी। अगर कोई दूसरा पढ़ लेता तो जी चाहता था कि उस पैगंबर पर इस्लाम कबूल करे। हजरात ये ऐसी किताब थी रसूलुल्लाह की सीरत की, जो गैर मुस्लिम स्वामी लक्ष्मण प्रसाद ने लिखा। लेकिन जब उससे पूछा गया, किसी ने कहा कि जनाब स्वामी लक्ष्मण प्रसाद साहब, आपने इतनी अच्छी किताब लिखी है, हम पढ़ते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, हमारे ईमान ताज़ा हो जाता है, हमारे ईमान ताज़े हो जाते हैं। आप बताइए कि आप क्यों नहीं उस पैगंबर पर इस्लाम ले आए, क्यों ईमान नहीं कबूल किया, तुम मेरे रसूल के गुलाम क्यों नहीं बन गए, मेरे आका के खादिम व गुलाम क्यों नहीं बन गए, और इस्लाम का कलमा क्यों नहीं पढ़ा। जो जवाब उसने दिया था, तो शायद ऐसा तमाचा था जो पूरी जिंदगी अगर वो याद रहे, हजरात ऐसा तमाचा था जो पूरी जिंदगी भुलाए नहीं जा सकता। अल्लाह अकबर। उसने जब कहा गया कि तुम पैगंबर पर इस्लाम क्यों नहीं कबूल करते, इतनी अच्छी किताब लिखी है हुजूर की सीरत पर, तो उसने कहा यकीनन जब रसूलुल्लाह की तारीफ सुनता हूँ, जब पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, तो वह दिल चाहता है, मेरा दिमाग कहता है, मेरा दिल कहता है, मेरा इश्क कहता है कि रसूलुल्लाह पर हम ईमान ले आए, रसूल का कलमा पढ़ ले, कुरान की बात मान ले, इस्लाम का कलमा पढ़ ले। लेकिन ऐ पूछने वाले, जब मुसलमानों का कैरेक्टर देखता हो, मुसलमानों की अय्यारी देखता हो, उनकी मक्कारी देखता हो, शराब के अड्डे पर ये जो नजर आते हैं, चूहे के अड्डे पर ये नजर आते हैं, चोरी ये करते नजर आते हैं, चूहा ये खेलते हुए नजर आते हैं, शराब ये पीते हैं, जिना ये कर रहे हैं, गलत काम ये कर रहे हैं, सूद
पर दुकानें ये चला रहे हैं, सूद पे बिजनेस अपना ये चला रहे हैं, जब इनका कैरेक्टर देखता हो हाथ जोड़कर कहता हूं कि मुझे हिंदू ही रहने दो। अल्लाहु अकबर। अगर हमारा किरदार ऐसा बन गया है कि दूसरे लोग इस्लाम कबूल करना चाहते हैं तो हम बीच में हायल हो गए हैं, हम बीच में उसे मुसलमान नहीं करने दे रहे हैं, हमारे इतने गिरे हुए हैं, हमारा किरदार इतना लूज और इतना लेस हो चुका है, इतना नीचे आ चुका है कि वो किसी के ईमान लाने की आड़ बनते हुए नजर आते हैं। मगर एक दौर वो भी था, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह है, वक्त के इमाम है, आपका इंतकाल होता है, जनाजा उठता है, लोग जनाजा लेके चलते हैं, तो जब मुसलमानों के इस इमाम का जनाजा उठा है, लाखों की भीड़ है उस जमाने में, अल्लाहु अकबर। अब ऐलान जब होता है कि मुसलमानों के इमाम का जनाजा है, ईसाई भी आज खड़े हैं, यहूदी भी खड़े हैं कि चले मुसलमानों का पैगंबर, मुसलमानों के वली का और मुसलमानों के इमाम का ये जनाजा है, चलो कम से कम शिरकत कर लेते हैं। लोगों ने शिरकत की है। अब एक ईसाई आगे बढ़ा है, उसने सोचा मुसलमानों के इस इमाम का क्यों न जनाजा छू लिया जाए, उसकी चारपाई छू ली जाए, उसकी जो पाय वो जो होते हैं उसके डंडे को छू लिया जाए, चलो छुआ जाए। जब आगे बढ़ा, मस करने के लिए आगे बढ़ा, तारीख गवाह है, उसने जैसे ही चारपाई पर हाथ लगाया था, बेख्तियार उसकी जबान से कलमे शहादत जारी हो गया था। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। रात में अर्ज करना चाहता हूं कि वो थे कि उनकी लाशें भी कलमा पढ़वा गई। हम कैसे हैं कि जिंदा होकर के भी हमसे तो अपने गैर तो गैर हैं, अपने भी दूर जा रहे हैं, अपने भी तनफुर कर रहे हैं, हमसे भी दूर किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं। हज़रात मैं अर्ज करना, क्योंकि हमारी जबान अलग है, हमारी बात अलग है, हम कहते कुछ हैं करते कुछ है, जो कहते हैं वो करते नहीं। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, क्यों कहते हो जो करते नहीं हो। और हाल यही है, नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया, मेराज की रात जब मैं अर्श पर गया, जन्नत की सैर कर रहा था, जहन्नम की सैर की, और तो जहन्नम मैंने देखा एक शख्स, एक बैल था जो सुराख से अंदर गया, फिर सुराख से जब बाहर निकला, फिर अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, मगर अंदर दाखिल नहीं हो रहा है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत जिब्राइल से इरशाद फरमाया, जिब्राइल क्या माजरा इसका बैल का, तो वो निकला है, दोबारा जा रहा, नहीं जा पा रहा। अल्लाहु अकबर। तो हजरत जिब्राइल ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल सल्लम, ये आपकी उम्मत के उन लोगों की मिसाल है जो लोग आपकी उम्मत में रहकर सिर्फ फेंकना जानते हैं, कहना जानते हैं, मगर करते नहीं है। सिर्फ ये वो लोग हैं जो मिंबरों पर कहते कुछ है, करते कुछ है, वो शिरकत करते कुछ है और कहते कुछ है, करते कुछ है, यानी वादा करेंगे। आज मैं अभी अर्ज कर रहा था, होटलों पर जाइए, हमारे मिजाज का देखिए, हमारे माहौल जरा देखिए, मिजाज जरा देखिए कि हम होटलों पर हम हैं। बात कहाँ की सियासत की कर रहे हैं? अमेरिका की सियासत की बात हो रही है, वो ऑस्ट्रेलिया की सियासत की बात हो रही है। कौन कहां पर क्या बनेगा, यहां बैठ कर लोग जो है चाय नोशी के आलम में करते हैं, साथ ही साथ जज्बात में आते हैं। तो हम तो अमेरिका की ईद से ईद बचा देंगे, लेकिन हजरात उनको खुद फिक्र नहीं है कि तुम अपना जायजा लो, तुम कहां हो, किस लायक हो। लेकिन हम अगर जोश में आते हैं, जज्बात में आते, तो क्या कर ले, तो ये सिर्फ बातें हैं, ये सिर्फ जबानी खर्च है, अमल नहीं है। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सीधी बात करो, सच्ची बात करो। आज हमारे पास सब कुछ है, उसके बावजूद भी ज़मीर अंदर से कहीं ना कहीं मजरूह है, ज़मीर अंदर से वो काम नहीं कर रहा, हमारी ईमान की वो हलावत नहीं रही, ईमान की वो चाशनी और ईमान का वो जोश नहीं रहा। आज सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे अंदर झूठ है, गीबत है, न जाने क्या है। मैंने ये बात कही थी अभी तो कि वो ज़माना भी याद करिए जब हम मुसलमान वो अंग्रेजों के कब्जे में, अंग्रेज हम पर हुकूमत कर रहे थे, अल्लाह अकबर, हुकूमत भी कर रहे थे, साथ साथ ऐसे आलम में बहुत सारे लोग शहीद भी हुए, जख्मी किए गए, बहुत से लोगों को बेघर किया गया, फकीर हो गए। कहते हैं कि हिंदुस्तान अभी आजाद नहीं हुआ था तो एक मुसलमान दिल्ली के गेट पर भीख मांगता था, दिल्ली के गेट पर भीख मांगता था, मुसलमान है। लेकिन अचानक उसका खुद का बयान है कि एक बहुत दूर से, इंग्लैंड से एक ऑफिसर अंग्रेज वो आया,
दिल्ली की जामा मस्जिद में दाखिल होने वाला था, मैं दरवाजे पर था, मैंने हाथ बढ़ाया, उस फकीर ने हाथ बढ़ाया कि बाबा मुझे भी दो। तो वो अमीर था, उसने पर्स निकाली और जो हो सका मुझे दिया, लेकिन जब देकर आगे बढ़ा पर्स अपनी जेब में रख रहा था, मगर जेब में न रखा, वो नीचे गिर गई, बजाय जेब में आने के जमीन पर आ गई। तो मैंने जेब में पर्स को गिरते हुए देखा था, मैंने आवाज लगाई, मिस्टर आपका गिर गया, मगर वो बड़ी तेजी के साथ, सुरात के साथ आगे बढ़ा और शोर इतना ज्यादा था कि उसने नहीं सुना। मैं आगे बढ़ा और पर्स को अपने पास ले लिया, रख लिया, और पर्स को लेने के बाद मैं मुंतजिर रहा कि अब साहब निकलेंगे, अब वो ऑफिसर निकलेंगे, वो अंग्रेज अब निकलेगा, लेकिन बहुत देर हो गई। फिर ऐसा लगा मुझे कि शायद वो किसी दिल्ली की दूसरी मस्जिद की दूसरी दरवाजे से निकल गए। मैं इंतजार करता रहा। इत्तेफाक से साल भर के बाद फिर उसी आदमी को मैंने आते हुए देखा कि आज फिर वो दौरे पे आया है, दिल्ली की जामा मस्जिद को मजीद देखने के लिए आया है। तो मैं खट से उठा और जल्दी से उसके पास पहुंचा और मैंने कहा, मिस्टर आप रुक जाइए। वो हैरान हो गया कि ये गरीब आदमी मुझे रोक रहा है, लेकिन उसकी बात मान ली। मैं जल्दी से गया और अपनी कुटिया में गया, झोपड़ी में, और उस झोपड़ी में रखे हुए बटुए को जो संभाल कर साल भर से रखा था, उठाकर ला करके उस अंग्रेज के हवाले किया, ऑफिसर के हवाले किया। ऑफिसर ने जब देखा तो अपने बटुए को पहचान लिया, अपनी पर्स को पहचान लिया, खोला, देखा जो रकम उस दिन मौजूद थी उतनी रकम आज भी मौजूद है, और जो डॉक्यूमेंट थे, जरूरियात कागजात, जो जरूरी कागजात थे, वो भी मौजूद है। फिर कहने लगा, एक तरफ उसके चेहरे पर निगाह डाली कि भीख मांगने वाला आदमी, और इतनी बड़े जो पर्स में इतनी रकम थी उसकी हिफाजत भी कर रहा है। पूछा कि ये क्या माजरा है, अगर तुम चाहते तो इस पर्स से पैसे निकालकर तुम जमीन भी ले सकते थे, कोई कारोबार कर सकते थे, अपने बिजनेस को बढ़ा सकते, ऐसा क्यों नहीं किया? तो कहने लगा, भीख मांगता हूं ये तो मजबूरी है, लेकिन किसी का माल खा ले ये मजबूरी नहीं है। कभी ये नहीं सुना, ये नहीं है, ये नबी अलैहिस्सलाम की तालीम नहीं है। भीख मांग लेना मेरी तो जरूरत पूरी हो जाती, लेकिन किसी का हक मांगना ये हमारे रसूल ने सिखाया नहीं है। हजरात, दूसरी बात उसने ये बताई, मामला ये है कि आप ईसाई हैं, ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, मैं रसूलुल्लाह का मानने वाला हूँ। कल मैं यहाँ पैसा आपका ले लेता, घर बनवा लेता, जमीन बनवा लेता, मैं दुकानदारी कर लेता, बहुत पैसे वाला हो जाता, लेकिन कल मैदान महशर में आपके नबी ईसा अलैहिस्सलाम मेरे नबी से अगर ये कहते कि मेरे उम्मती का बटुआ गिरा, तेरे उम्मती ने उठा लिया, तो मेरे रसूलुल्लाह रुसवा हो जाते। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर मेरे नबी रुसवा हो जाए और शर्मिंदा हो जाए, ये मुझे कभी मंजूर नहीं है। अल्लाह अकबर। तो जब हम गरीब थे तो खुददार थे, जब हमारे बदन पर फटा हुआ कपड़ा था, जब हम जंजीरों में जकड़े हुए थे, जब अंग्रेज हम पर मुसल्लत किए हुए थे, तब हमारे किरदार कितने अनोखे थे। हम सच बोलते थे, हम झूठ के करीब नहीं थे, हम अमीन थे, अमानतदार थे, हम खयानत नहीं कर रहे थे। आज लोग होटलों पर बैठ कर कहते हैं कि इस्लाम पर चलना बड़ा मुश्किल काम है, इस्लाम पर चलना बड़ा मुश्किल काम है। जालिमों, धोखा देते हो, लोगों को खुद धोखे में पड़े हो, दूसरे को धोखा दे रहे हो। आज तुम्हारी आसाइश के लिए, आज तुम्हारे आराम के लिए क्या कुछ नहीं है मस्जिदों में पानी है, नल लगा हुआ है, टोटी है, इमाम है, मुअज्जिन है, कालीन है और टाइल्स लगा दी गई है, फ्रीजर है, फ्रीज है, कूलर है, एसी है, कालीन है, सारी चीजें मुहैया है, उसके बावजूद पंखे कूलर सब लगे हैं, और होटल में बैठ के कह रहा है कि आज आसान नहीं है, इस्लाम पर चलना आसान नहीं है। जालिम, धोखा न दे, तेरे लिए आसान है, तेरे लिए मुश्किल है कि करबला वाले हुसैन के लिए मुश्किल था, तेरे लिए मुश्किल है कि हजरत खब्बाब के लिए मुश्किल था, तेरे लिए मुश्किल है कि हजरत बिलाल हबशी के लिए मुश्किल था। एक बार अगर अल्लाह का नाम ले लेते, कितने कोड़े मारे जाते, पीठ पर पत्थर रखकर घसीटा जाता, लौंडों को लगा करके धूप में मारा जाता था। तुम क्या समझते हो? तुम ये कह दोगे तो बच जाओगे कि आज इस्लाम पर चलना मुश्किल है? इस्लाम पर आज चलना आसान है। आज हम इस्लाम क्या चाहता है? हमने इस्लाम के लिए आंख बंद करिए थोड़ी देर के लिए, सोचिए हमने इस्लाम के लिए क्या किया है, कौन सी जंगें लड़ी है हमने, कब हम गए थे लड़ने के लिए, क्या उठाया आलम? ना हमने खैबर का किला उखाड़ा है, न जंग बदर में थे, न जंग उहद में थे, न गज़वे तबूक में थे, न हुनैन में थे, न खंदक में थे, किसी जंग में तो नहीं थे, करबला में तो भी नहीं थे। हमने इस्लाम के लिए क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। फिर भी कहते हो
کہ اسلام جو تعلیمات دیتا ہے عمل کرنا بہت مشکل ہے؟ بہت مشکل نہیں ہے. اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو نا. تھوڑا آؤ قریب آؤ, دیکھو وہ کیسی مشکلات سے اسلام آیا تھا. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنی قمیض اتاری تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کہ حضرت خباب کی پیٹھ میں سفید سفید نشان ہے. ارشاد فرمائے خباب یہ نشان کیسے ہیں؟ بیماری کے ہیں؟ برس کے ہیں؟ کیسے ہے؟ تو حضرت خباب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ارشاد فرمائے عمر تمہیں کیا پتا, تمہیں کیا پتا, میں اس وقت مسلمان ہو گیا تھا جب آپ مکہ کی گلیوں میں ننگی تلوار لے کر میرے مصطفیٰ کو مارنے کی فکر میں لگے تھے, میں مسلمان ہو گیا تھا. اے عمر فاروق اعظم, جب میں مسلمان ہوا گھر والوں نے مجھے گھر سے باہر کیا, سوشل بائیکاٹ کیا گیا, رشتہ داروں نے مجھے بائیکاٹ کر دیا, اور اس پر بھی ان کی آنکھ ٹھنڈی نہیں ہوئی تو میرے کپڑے کو اتار کر دھڑکتے ہوئے دہکتے ہوئے انگارے میں پھینکا, اس میں ڈال دیا. پھر یہ میری پیٹ تھی اور انگارہ تھا, وہ انگارہ جل رہا تھا, میری چلبی پگھل رہی تھی, پگھل پگھل کر انگاروں کو بجھا رہی تھی, ان کے دل کی آگ ٹھنڈی ہو رہی تھی ظالموں کی. مگر امیر المؤمنین خدا کی قسم ان کے دل کی آگ تو ٹھنڈی ہو رہی تھی, مگر میرے دل میں جو ایمان کی حرارت تھی اس میں مزید اضافہ ہو رہا تھا. رسول اللہ کی محبت تھی, جو اللہ کی محبت تھی, اس میں مزید اضافہ ہو رہا تھا. اے عمر فاروق اعظم, یہ داغ یہ بس کا داغ نہیں ہے, یہ بیماری کا داغ نہیں ہے, یہ کسی اور چیز کا داغ نہیں ہے, یہ اللہ اور رسول کی محبت میں داغا ہوا داغ ہے. اللہ اکبر. پھر حضرت عمر فاروق اعظم ارشاد فرماتے ہیں اے خباب اپنی قمیض کو ایک بار اور اٹھاؤ, میں اس داغ کو چومنا چاہتا ہوں جو رسول اور خدا کی محبت پہ داغی گئی. نعرہ تکبیر. ہم نے اسلام کے لیے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. پھر بھی اتنے پسپا, اتنے پیچھے, اتنے کمزور. رات بھر ہم جاگتے ہیں, رات بھر ہم جاگتے ہیں, اور صبح کو 10 بجے 9 بجے اپنی عادت کے مطابق فجر گول کر کے ہم اٹھتے, کہتے ہیں پریشان ہے. اعلیٰ فرماتے دل لہو میں کھونا تیرا, شب صبح تک سونا تیرا, شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں تمہارے پاس, نہ رسول اللہ کی شرم ہے نہ اللہ کا خوف ہے, کیا ہے تمہارے پاس؟ کچھ بھی نہیں. اللہ اکبر. ہم اپنے کردار کو, اپنی زبان کو صحیح رکھے, اپنے تقوی کو بنائے, اپنے کیریکٹر کو سدھارے. یہ اسلام کی جو لہلہاتا ہوا پوری دنیا میں, جو اسلام کا جو چراغ آپ کو چمکتا ہوا دمکتا ہوا, اسلام کی شکل میں جو کچھ دکھ رہا ہے, یہ ہماری محنتوں کا نتیجہ نہیں ہے, یہ ہمارے بزرگوں کی محنت کا نتیجہ ہے. حضور غوث پاک کی برکتوں کا نتیجہ ہے, ان کی محنت کا نتیجہ ہے, خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم جگہ جگہ لوگوں کو مسلمان دیکھتے ہیں اور اسلام کا کلمہ پڑھنے والے ملتے ہیں پوری دنیا میں. یہ ہماری محنتوں کا نتیجہ نہیں ہے, ہمارے بزرگوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم یہاں ہیں بتا دیتے ہیں کہ ہم گول گھر میں ہیں, گول گھر میں ہیں بتا دیتے ہیں ہم نخاس پر ہیں, کوئی گھر میں ہے کہتا ہم باہر ہے, باہر ہے کہتا ہے گھر میں ہے. یہ جھوٹ کیوں بولا جا رہا ہے, کیوں کہا جا رہا؟ پتہ چلا صحیح معنوں میں اللہ کا خوف نہیں ہے, جبکہ قرآن کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین. حالانکہ لعنت کرنا کسی شخص پر جائز نہیں ہے, لیکن جھوٹا ایسا مردود شخص ہے کہ اس پر لعنت کرنی جائز ہے, قرآن نے جائز قرار دیا ہے. بتا اتنی بڑی سزا قرآن دے رہا ہے, پھر بھی ہر کوئی مذاق میں جھوٹ بول رہا ہے, چلتے پھرتے جھوٹ بول رہا ہے. مگر اپنے نبی کی زندگی دیکھو, سرکار ایک شخص سے وعدہ کر لیتے, وہ شخص سرکار سے وعدہ کر لیتا ہے, راستے میں چلتے چلتے کہتا ہے یا رسول اللہ ابھی میں آیا, تھوڑا ٹھہریے میں ابھی آیا. لیکن وہ گیا تو بھول گیا, 1 دن 2 دن 3 دن, تیسرے دن یاد آیا وہ حضور علیہ السلام سے میں نے وعدہ کیا تھا, وہ جلدی جلدی واپس آیا تو دیکھا بدستور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی تشریف فرما ہے. یہ ڈر گیا خطا میں نے کی ہے, بھول میں گیا ہوں, گناہ مجھ سے ہو گیا, کہیں سرکار مجھ پر برس نہ پڑے, کچھ کہہ نہ دے, کچھ ایسی باتیں نہ کہہ دے. مگر رسول اللہ نے صرف اتنا کہا فلاں تم نے تو مجھے دقت میں ڈال دیا, مشقت میں ڈال دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیکھو کہ ایک شخص بھولا وہ تھا,
भूला वो था, गुनाह उसका था, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन तक जो वादा किया उसको निभाने के लिए आप खड़े थे। हमारा हाल क्या है हजरात? हमारा हाल आप सब जानते हैं, कहते कुछ है करते कुछ है। क्या करा है क्या घराना है गौसुल वरा क्या तराना है गौसुल वरा और क्या घराना है गौसुल वरा कि क्या जिनके तलवों को चूमे फरिश्ते, जिनके तलवों को चूमे फरिश्ते, ऐसा नामा है जिंदाबाद जिंदाबाद। हम सब के गोरखपुर के अहले गोरखपुर की शान, हम सब की शिनाख्त जनाबे खतीब मिल्लत अल्लामा मुफ्ती अजहर शमसी साहब यहाँ पर अफरोज हैं। अब मैं चाहता हूँ कि आप उनसे उनका नूरानी खताब समाअत फरमाएं, वक्त भी हो चला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म व मने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे इमा मददे। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के कदम, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। मुअज़्ज़ज़ सामीनो हाज़रीन, आइए हम और आप मिलकर कुछ सुनने और सुनाने से कब्ल अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर नूर मुजस्सम सैयद आलम जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दरूद पाक पेश कर लें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये महफिल हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ मंसूब है, जिसमें हम और आप मौजूद हैं। और ये सिलसिला पूरे महीने जारी व सारी रहता है। कोई भी शरीयत के अंदर ऐसा अमल करना जिसकी ममानियत कुरान व हदीस में नहीं है, शरीयत में नहीं है, उसका करना जायज़ है। इसी बुनियाद पर जितने महफिल हम मुनाकिद करते हैं और जितनी मजलिसें हम सजाते हैं, वो सारी की सारी महफिलें मजलिसें बाइस खैर व बरकत हैं, शरन जायज़ व दुरुस्त है, इसमें कोई हरज नहीं। लेकिन इन महफिलों का सवाब आपको मालूम होना चाहिए कि नीयत पर है। अगर बंदा किसी भी तरह की कोई भी महफिल करे या कोई भी दीनी काम करे, नीयत जब तक दुरुस्त नहीं रखेगा उसका फ़ायदा उसे नहीं हो सकता। इसलिए कि तमाम आमाल का दारो मदार उसकी नीयत पर है। बंदा जब नीयत बेहतर करेगा तब भी अल्लाह ताला उसका सवाब उसे अता फरमाएगा। जब बंदों की नीयत सही होंगी, दुरुस्त होंगी, तो जो भी आमाल वो करेंगे अल्लाह ताला उस आमाल को कबूल भी फरमाएगा
اور اس کا بہترین بدلہ اور صلہ عطا فرمائے گا۔ محب گرامی سے فلسطین کے متعلق کچھ اشعار سنیں، جس میں مناجات کی گئی، دعائیں کی گئیں کہ اللہ تعالیٰ صلاح الدین ایوبی کو پیدا فرما دے یا صلاح الدین ایوبی کو پھر بھیج دے۔ لیکن آپ کو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کے پہلے حالات کو جاننا ضروری ہے کہ ایسے ہی دنیا میں اللہ نے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کو نہیں بھیجا تھا، بلکہ ان کے دنیا میں آنے سے پہلے ان کے والدین کی نیت کیا تھی اور کس بہترین نیت کا وہ ثمرہ اور بدلہ تھے، اسے بھی جاننے کی ضرورت ہے۔ مختصر میں صرف یہ بات بتا دوں کہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ جب ابھی آپ کی ولادت نہیں ہوئی تھی، پیدائش ابھی آپ کی نہیں ہوئی تھی، تو آپ کے والد جن کا نام حضرت نجم الدین ایوب تھا، انہوں نے کافی زمانے تک شادی نہیں کی۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد حضرت نجم الدین ایوب نے زمانے تک شادی نہیں کی، کافی عمر آپ کی ہو گئی، تو ایک مرتبہ ان کے بھائی جن کا نام تھا اسد الدین ایوب، انہوں نے پوچھا کہ بھیا کیا بات ہے، کیوں نہیں آپ شادی کر رہے؟ تو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد نے کہا کہ دیکھو میں اس لیے شادی نہیں کر رہا ہوں کہ میں جس طریقے کی خاتون چاہ رہا ہوں، جس طریقے کی لڑکی چاہ رہا ہوں، مجھے ویسی خاتون نہیں مل رہی۔ جب مجھے اس طرح کی خاتون ملے گی تب میں نکاح کروں گا، تب میں شادی کروں گا۔ تو آپ کے بھائی اسد الدین صاحب نے پوچھا کہ بھیا تو آپ لڑکی کیسی چاہ رہے ہیں؟ تو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد نے کہا کہ دیکھو مجھے ایسی خاتون چاہیے جس کی یہ نیت ہو کہ میرے وطن سے جو بچہ پیدا ہو وہ بیت المقدس کو فتح کرے۔ آپ غور کریں کہ ابھی سلطان صلاح الدین ایوبی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، ان کے والد نے اس لیے شادی نہیں کی زمانے تک کہ ان کو ایسی خاتون کی تلاش تھی جس کی یہ نیت ہو کہ ان کے وطن سے جو بچہ پیدا ہو وہ بیت المقدس کو فتح کرے۔ تو آپ کے بھائی نے کہا کہ بھیا ایسی جو ہے خاتون کہاں آپ کو ملے گی؟ تو حضرت نجم الدین ایوب نے اپنے بھائی اسد الدین سے کہا کہ دیکھو جب نیت بندوں کی درست ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انتظام فرما دیتا ہے۔ میری نیت اچھی ہے، میری نیت درست ہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر کرم ہوگا، فضل ہوگا، اور ضرور میری اس نیت کے مطابق مجھے ایسی خاتون سے ملا دے گا، یقیناً جس سے جو بچہ پیدا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ سے بیت المقدس کو فتح فرمائے گا۔ حضرت نجم الدین رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے قاضی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو پردے سے ایک خاتون نے کہا کہ حضور آپ نے جس نوجوان کا رشتہ میرے لیے بھیجا تھا میں نے اسے دیکھا، اس کے اندر سب کچھ موجود ہے، وہ بہادر ہے، جنگجو ہے، خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے، عبادت و ریاضت سب کچھ کرتا ہے، لیکن اس کی وہ سوچ نہیں ہے جو میری سوچ ہے، جو میری نیت ہے وہ اس کی نیت نہیں ہے۔ قاضی صاحب نے کہا کہ آخر تمہاری نیت کیا ہے؟ تو اس خاتون نے قاضی صاحب سے کہا کہ میری نیت یہ ہے کہ میں ایسے نوجوان سے نکاح کروں جو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جنت میں لے جائے، اور اس کی یہ نیت ہو کہ اس کے نطفے سے اور میرے پتن سے جو بچہ پیدا ہو اللہ تعالیٰ اس بچے کے ہاتھ سے بیت المقدس کو فتح فرمائے۔ اب سوچئے کہ اب آپ غور کریں کہ حضرت نجم الدین نے کتنے زمانے تک شادی نہیں کی کہ ایسی خاتون کی تلاش انہیں تھی، وہ خاتون جس کی خود یہ نیت ہو کہ اس کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ بیت المقدس کو فتح کرے گا۔ جب ایسی خاتون ملے گی تب وہ نکاح کریں گے، تو اب وہ خاتون ان کے سامنے تھی، پردے کے پیچھے تھی۔ قاضی صاحب سے جب اس خاتون نے کہا تو قاضی صاحب نے کہا کہ اب دیکھو تمہاری نیت تو اچھی ہے،
हो सकता है कोई ना कोई नौजवान ऐसी नीयत रखता हो, यकीनन ऐसा नौजवान मुझे मिल जाएगा तो मैं उसका रिश्ता तुम्हारे पास भेज दूंगी। बाहर काजी साहब नजमुद्दीन जो अपने वक्त के गवर्नर थे उनके पास आकर बैठे तो नजमुद्दीन ने काजी साहब से पूछा कि आप मुझे ये बताएं कि ये खातून कौन थी। हजरत काजी साहब ने कहा कि हुजूर ये इसी मोहल्ले की एक गरीब खातून है और इसकी नीयत कितनी बेहतर है, ऐसा नौजवान कहाँ मिलेगा इस जमाने में कि ये खातून उससे निकाह करे। तो हजरत नजमुद्दीन ने काजी साहब से कहा कि हुजूर शायद आपको मालूम नहीं है कि आज तक मैंने इसीलिए निकाह नहीं किया है कि मेरी भी यही ख्वाहिश थी कि मैं उस खातून से निकाह करूं जिसकी नीयत ये हो कि उसके पेट से जो बच्चा पैदा हो वो बैतुल मुकद्दस को पता करे। मेरी नीयत के मुताबिक अल्लाह ने मुझे ऐसी खातून से मिला दिया है, लिहाजा मेरा रिश्ता इस खातून के पास आप भेज दें और मैं इससे निकाह करना चाहता हूं। हजरत काजी साहब ने कहा हुजूर ये बहुत गरीब खानदान की लड़की है, आप अपने वक्त के जर्नैल हैं, आप बादशाह हैं, गवर्नर हैं, आपका रिश्ता क्या इससे मुनासिब है? आपने कहा मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है कि ये गरीब है कि अमीर है, मेरे लिए तो बादशाहों की लड़कियों के रिश्ते भी मौजूद हैं, लेकिन मैं उन सब पर इस खातून की नीयत की वजह से इसे फौकियत देता हूं, आप मेरा निकाह इससे करा दें। काजी साहब ने उस खातून का निकाह आपसे कराया और जब निकाह हुआ और निकाह होने के बाद इन दोनों ने आपसी रजामंदी से जिंदगी गुजारी तो अल्लाह ने इन्हीं से जिस बच्चे को पैदा किया उसका नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी था और यकीनन अल्लाह ने उनके दस्ते मुबारक पर बैतुल मुकद्दस को फतह फरमाया। नीयत जब दुरुस्त होती है तो अल्लाह तबारक व तआला उसका बेहतरीन बदला और सिला दुनिया में भी हमें अता फरमाता है और उसका बेहतरीन बदला और सिला आखिरत में भी हमें अता फरमाएगा।